morning students, welcome to your GK class. Today children, we will learn about different places in a country. Okay, so now you'll read the two lines which is given. Okay, the chapter name is Knowing India. Okay, the chapter name is Knowing India and the page number is 26. Okay, page number is 26. Now start reading. Novi is visiting different places in the country. Write the correct answer options from the help box to name this famous places. Now children, you have been given the pictures of 4 famous places in India and you have to guess the name of the place with the clues given. Okay, तो आपको क्या दिया गया, आपको 4 पिक्चर्स दिए हुए बच्चा और आपको क्या करना है, आपको गेस करना है कि इनमें से वो कौन सी पिक्चर है. यू कैन सी हियर द डायलॉग बॉक्स हियर. यहाँ पे आपको जो आंसर्स वो दिए गए हैं और उसके हिंट यहाँ पे दिया गया है. ठीक है, तो आपको उस हिंट से आपको गेस करना है कि ये कौन सा है. ओके, now let us read the first question. Okay, now the only active volcano in India. तो आपसे क्या पूछा गया है, the only active volcano. volcano means ज्वालामुखी. सी, जो माउंटेन होता है बड़ा सा, जब वहाँ से आग निकलती है तो वो हो जाता है ज्वालामुखी. ओके, volcano. so the only active volcano means ऐसा volcano जिसमें से अभी भी लावा निकलता है. ओके, तो ये कहाँ पर है, इट इज़ इन दी बैरन आइलैंड, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. ओके, तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में जो बैरन आइलैंड है वहाँ पर इंडिया का अभी भी एक एक्टिव वॉल्केनो अवेलेबल है. ओके, सो यू विल राइट हियर बी. ओके, सो राइट डाउन चिल्ड्रन बी. I hope you have written this. This is page number 26. And date is 11th June. Okay. Now children, let us read the next picture. Now the national park in Assam known for its one-horned rhino. Now you have to find the name of the national park in Assam which is known for its one-horned rhino. As you can see in the picture, ये जो है ये one-horned rhino है, यानी एक सींग वाला गेंडा. ओके, इसको सिर्फ एक ही सींग है. जैसे आपने काऊ को देखा होगा, उसको 2 हॉर्न्स होते हैं, ऐसा ना, 2 हॉर्न होते हैं ना काऊ को. उसी तरह से ये जो राइनो है इसको कितने हॉर्न होते हैं, एक ही हॉर्न होता है. तो वो नेशनल पार्क का नाम क्या है, काजीरंगा नेशनल पार्क. तो आप इस बॉक्स में क्या लिखेंगे, ए. ओके, राइट डाउन चिल्ड्रन ए. आई होप यू हैव रिटन दिस. ओके, नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट पिक्चर. Now the next picture is of a lake. Okay, so it is a lake in Srinagar. Okay, a lake in Srinagar known for its houseboats. Now ऐसा lake in Srinagar जो अपने houseboat के लिए famous है. तो ये कौन सा lake है, the Dal Lake. Okay, कौन सा lake है, the Dal Lake. यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, D लिखेंगे. Okay children, so write down. I hope you have written this. Now let us look at the next picture. The next picture is of desert in Rajasthan. Okay. So इस desert का नाम क्या है, the Thar Desert. Okay. इसको हम Great Indian Desert भी कहते हैं and इसका दूसरा नाम क्या है, Thar Desert. और Thar Desert का next name यानी दूसरा नाम क्या है, the Great Indian Desert. So write down children. First box में आप B लिखेंगे, सेकेंड में ए, थर्ड में डी एंड फोर्थ में सी. ओके चिल्ड्रन, आई होप यू हैव रिटन दिस.
Okay. So the only active volcano in India is the Barren Island in Andaman and Nicobar Island. Then the next is the National Park for Assam, known for its one-horned rhino, is the Kaziranga National Park. And the lake in Srinagar, known for its houseboats, is the Dal Lake. And the fourth desert in Rajasthan, it is the Thar Desert. Okay, I hope you have written this, children. Okay, now let us see the next part of this picture. Now children, let us read this. Answer this question. Now there has been given 4 questions. There are 4 questions and you have to answer one by one. Okay. Now who is known as the father of the nation? Now children, who is known as the father of nation? Yes, he is Mahatma Gandhi. So now children, you will write down here. आप यहाँ लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे? महात्मा गांधी. We will spell Mahatma Gandhi. Let me just. Okay. So let us write Mahatma Gandhi. M-A-H-A-T-M-A. Mahatma Gandhi. Okay. So Mahatma Gandhi is our father of the nation. Children, you will write it here. Okay. इस box में आप लिखेंगे. So write down, children. Who is the father of the nation? He is Mahatma Gandhi. So write down M-A-H-A-T-M-A. Mahatma. M-A-H-A-T-M-A. Mahatma, and then Gandhi, G-A-N-D-H-I. Okay, so you will write Mahatma Gandhi. Now children, I hope you have written this. Okay, now let us see the next question. How many states are there in India? यानी आपसे पूछा गया है कि कितने states हैं इंडिया में. So बच्चों, how many states are there in India? There are 2, 9, 29. So write down, children. There are how many states in India? There are 29 states in India. Now who is the father of nation? The father of nation is Mahatma Gandhi. And how many states are there in India? There are 29 states in India. Now let us read the next question. Now, which is the oldest commonly spoken language in India? You will read it again. Which is the oldest commonly spoken language in India? Now we will read it together. Which is the oldest commonly spoken language in India? Now there is also a hint, so we will read the hint also. Hint, it is from South India. Now read it again. Hint, it is from South India. Now children, which is the oldest commonly spoken language in India? It is the Tamil. Okay, so T-A-M-I-L, Tamil. Okay, so Tamil is the oldest commonly spoken language in India. इसका मतलब क्या है कि हमारे इंडिया में सबसे ओल्डेस्ट यानी सबसे पुराना लैंग्वेज जो है, जो बहुत सालों से चला रहा है, बहुत ही पुराना है, वो कौन सा लैंग्वेज है? वो है तमिल. ओके, सो इट इज़ द ओल्डेस्ट यानी ये सबसे बड़ी लैंग्वेज, सबसे पुरानी लैंग्वेज. ओके, सो राइट डाउन चिल्ड्रन, TAMIL, तमिल. I hope children you have written this. Now let us
read the question number 4. Now let us read, which Indian language is written in the Gurmukhi script. Okay, so read it again. Which Indian language is written in Gurmukhi script? Okay, so read it fast. Which Indian language is written in Gurmukhi script? ओके, सो इसका मतलब क्या है कि ऐसी कौन सी लैंग्वेज है इंडिया की जिसे गुरमुखी स्क्रिप्ट में लिखा गया है? तो वो कौन सी लैंग्वेज है? इट इज़ पंजाबी. ओके, सो हाउ विल यू राइट पंजाबी? हमें हिंट भी दिया है, इट इज़ फ्रॉम नॉर्थ इंडिया, इट इज़ पंजाबी. PUNJABI. ओके, इट इज़ पंजाबी. सो विच इंडियन लैंग्वेज इज रिटन इन द गुरमुखी स्क्रिप्ट? इट इज़ Punjabi. Okay, so write down, children. So again, who is known as a father of nation? He is Mahatma Gandhi. Okay. Then, how many states are there in India? There are 29 states in India. How many states in India? 29. Then, which is the oldest commonly spoken language in India? यानी सबसे पुरानी लैंग्वेज कौन सी है? तो it is the Tamil. Okay. Then, which language is written in Gurmukhi script? It is Punjabi. So, I hope you have written this. Very good, children. I hope you have written this. Now we'll read the tidbits. Okay. The Indus Valley civilization is one of the oldest civilization in the world. Now I'll read it again. The Indus Valley civilization is one of the oldest civilization in the world. यानी ये क्या कह रहा है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो बहुत ही पुराना सिविलाइजेशन है हमारे वर्ल्ड का. Then read the next sentence. It was located in the Indian subcontinent. Okay, so read it again. It was located in the Indian subcontinent. Our knowledge of the people of the Indus Valley is limited since nobody has been able to understand their script yet. Now you will read it nicely. Our knowledge of the people of the Indus Valley is limited since nobody has been able to understand their script yet. जैसे हम इंग्लिश पढ़ लेते हैं, हमें पता, अगर मैंने यहाँ पे आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो जो सब कुछ लिखा हुआ है आप इजीली पढ़ पा रहे हो, यस और नो? जैसे अभी हमने पढ़ा, वैसे ही इंडस वैली सिविलाइजेशन के वक्त जो लोगों ने लिखा हुआ वो आज तक हमें समझ में नहीं आया. क्यों? क्योंकि उनकी जो लैंग्वेज है, उनका जो स्क्रिप्ट है, हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं, और ये सबसे पुरानी सिविलाइजेशन है. ओके, सो दिस इज द इंडस वैली सिविलाइजेशन. अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे पुरानी सिविलाइजेशन कौन सी है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये है इंडस वैली सिविलाइजेशन. ओके चिल्ड्रन. Now children, we will just have a quick recap of what we have learned. Now see children, this is the volcano, the only active volcano in India, which is the Barren Island volcano, which is in Andaman and Nicobar. तो ये जो स्क्रीन पे ये जो फोटो देख रहे हैं आप, जो पिक्चर देख रहे हैं ये वॉल्केनो का, ये कौन सा वॉल्केनो है? द बैरन आइलैंड वॉल्केनो ऑफ Andaman and Nicobar Island. Okay children. Now see children, this is the one-horned rhino which is in Assam. ये कौन से नेशनल पार्क में आपको देखने मिलेगा? ये आपको काजीरंगा नेशनल पार्क में देखने मिलेगा. सो दिस इज द वन-हॉर्न्ड राइनो. अगर आप यहाँ पे देखें
तो यहाँ पे ये जो है ये उसकी हॉर्न है, यानी ये उसकी सींग है, और इसको एक ही सींग है। एंड दिस एनिमल इज अ राइनो। ये आपको कहाँ मिलेगा देखने के लिए? ये आपको काजीरंगा नेशनल पार्क में मिलेगा, और काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? आसाम में। ओके, so this is the one-horned rhino. I hope you have seen this. Yes. Now let us see the next picture. See, this is the houseboat. ये क्या है? ये हाउस बोट। अगर आप देखें यहाँ पर तो ये नीचे वाटर बॉडी है। ये क्या है? ये डल लेक है। ये लेक है जहाँ पे बहुत सारा पानी है। यस और नो? यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे बहुत सारा पानी है, और इसके ऊपर एक हाउस बोट है, यानी ये बोट है, बोट के अंदर ऊपर एक घर बना हुआ है। तो ये क्या है? हाउस बोट। और ये कौन सा लेक है? ये डल लेक है। और डल लेक हमें कहाँ मिलेगा देखने के लिए? हमें श्रीनगर में मिलेगा। ओके, सो ये क्या है? हाउस बोट है। एक और तरह की हाउस बोट है जो आपको श्रीनगर में देखने मिलेगी, वो है शिकारा। ओके, तो फर्स्ट हम ये देखेंगे ये क्या है? ये एक हाउस बोट है। सी, पानी के ऊपर ये घर बना हुआ है बोट के ऊपर। तो ये क्या है? हाउस बोट है। आपको कहाँ देखने मिलेगा? डल लेक में। ओके चिल्ड्रन, दिस इज दी शिकारा। ये भी आपको कहाँ देखने मिलेगा? श्रीनगर में। कौन से लेक में? डल लेक में। ओके चिल्ड्रन, कैन यू सी दिस? दिस इज अ शिकारा। ये जो है, ये जो बोट है, ये क्या है? ये शिकारा है। यस, नाउ सी व्हाट इज दिस? दिस इज अ डेजर्ट। ये डेजर्ट कहाँ मिलेगा हमें देखने के लिए? राजस्थान में। आप देखिए यहाँ मिट्टी मिट्टी है, सिर्फ मिट्टी ही मिट्टी है, और यहाँ पे छोटे छोटे पेड़ हैं, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं, और बहुत ही तेज़ धूप होती है डेजर्ट में। ओके, सी, ये है डेजर्ट। यू कैन सी हियर, हर जगह मिट्टी ही मिट्टी है। दिस इज अ sand dunes. Okay, where you can find this place? You can find in desert in Rajasthan. See, now this is a camel. Camel is the sheep of the desert. यानी लोग जो है यहाँ पर कैमल की हेल्प से ट्रैवल करते हैं, यहाँ से वहाँ जाते हैं। ओके, चलिए अब यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे। नाउ चिल्ड्रन, वी विल लर्न अबाउट दी स्टेट्स इन इंडिया। ओके, हम क्या पढ़ेंगे? हम स्टेट्स ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सबसे ऊपर जो है ये है नॉर्थ। नाउ लुक चिल्ड्रन, ये है नॉर्थ, ये है साउथ। दिस इज नॉर्थ इंडिया, दिस इज साउथ इंडिया, दिस इज ईस्ट इंडिया, एंड दिस इज वेस्ट इंडिया। ओके, नाउ वी विल लर्न अबाउट दी स्टेट्स इन इंडिया। हम क्या पढ़ेंगे? हम जितने स्टेट्स हैं इंडिया में उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द टॉप। ओके, तो पहला स्टेट क्या है? जम्मू एंड कश्मीर। यहीं पर है आपका श्रीनगर भी, जहाँ पर आपने अभी हाउस बोट्स देखे, जो यहाँ पर आपको इजीली मिल जाएंगे देखने। ओके, तो श्रीनगर कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में। तो ये जो है आधा ये लद्दाख हो चुका है। ओके, ये क्या हो चुका है? इट हैज़ बिकम लद्दाख। ओके, देन वी हैव हिमाचल प्रदेश। ये क्या है? हिमाचल प्रदेश। देन पंजाब, next state is Punjab. Then you have हरियाणा, दिल्ली। दिल्ली क्या है? हमारे इंडिया का कैपिटल। ओके, दिल्ली क्या है? हमारे इंडिया का कैपिटल। इंडिया का कैपिटल क्या है? न्यू दिल्ली। ओके,
So now let us see the next state. The next state is उत्तर प्रदेश. उत्तर प्रदेश में ये हमारा स्टेट है जहाँ हम रहते हैं. हमारी सिटी वाराणसी कौन से स्टेट में है? उत्तर प्रदेश में है. ओके, सो दिस इज उत्तर प्रदेश. ओके, नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट स्टेट. दिस इज बिहार. देन वी हैव सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, Assam, Nagaland, Manipur, Meghalaya and Mizoram. You can see here the various states: Mizoram, Manipur, Mizoram and then Tripura also. So you can see the eastern states. Now look here, बेटा यहाँ पर अभी इस वक्त ईस्टर्न स्टेट्स में देखो, ये पूरा इंडिया है. ओके, सो लुक हियर, देयर इज मेघालय, देयर इज त्रिपुरा, देयर इज मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, Arunachal Pradesh. Okay, and we have Sikkim also. Again we will just have a quick recap. First is Jammu Kashmir. See here, Jammu Kashmir, और यहाँ पे यह हाफ अभी लद्दाख हो चुका है. ओके, सो हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तरांचल, हरियाणा, दिल्ली ये हमारा कैपिटल है. उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, देन वी हैव मेघालय, सिक्किम, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम एंड त्रिपुरा. ओके, देन वी हैव राजस्थान. ओके, सो नाउ लेट अस लुक हियर. अगेन लुक हियर, दिस इज गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार के नीचे झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल. अगेन यू कैन सी हियर मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, सिक्किम, वेस्ट बंगाल. ओके, सो यू कैन सी हियर द वेरियस स्टेट. हिमाचल प्रदेश, उसके नीचे उत्तरांचल, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़. Okay, and here you have West Bengal. Now again we will go bit lower. Now you can see here, wait, see here, यहाँ पर यहीं पर आपको डेजर्ट मिलेगा देखने के लिए, दी थार डेजर्ट और दी ग्रेट इंडियन डेजर्ट. अगर आपसे कोई पूछे कि थार डेजर्ट या ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहाँ पर है, तो ये राजस्थान में. एंड जो अभी आपने पढ़ा था दी वन हॉर्न राइनो, जो आसाम में मिलेगा नेशनल पार्क में, वेयर इज आसाम, ठीक है. तो जो आपको वन हॉर्न राइनो है आपको कहाँ देखने मिलेगा? आपको आसाम में मिलेगा. जो थार डेजर्ट है जिसे हम ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहते हैं, वो कहाँ मिलेगा आपको देखने के लिए? राजस्थान में. ओके, let us go lower. Okay, now see, this is Gujarat, Madhya Pradesh, Orissa, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश. आंध्र प्रदेश भी अब क्या हो चुका है? हाफ हो चुका है. और यहाँ पर आपको एक नया स्टेट मिला है, तेलंगाना. ओके, जैसे ऊपर कश्मीर जो है हाफ हो चुका है और वहाँ पे आपको लद्दाख हुआ है, तो इस मैप में भी आप देखेंगे कि यहाँ पे आंध्र प्रदेश जो है, आंध्र प्रदेश भी हाफ हो चुका है और उसमें नया स्टेट जो आया है, इट इज़ दी तेलंगाना. ओके, नाउ द स्मॉल स्टेट इज गोवा. ठीक है, ये जो स्मॉल स्टेट है ये कौन सा स्टेट है? दिस इज गोवा. ओके, नाउ लुक हियर चिल्ड्रन, गोवा के बाद कर्नाटका, देन वी हैव पौंडीचेरी, तमिलनाडु एंड द लास्ट केरला. ये स्पेलिंग गलत है केरला की, अब यहाँ पे दिस इज द स्पेलिंग ऑफ केरला. ओके, yes, this is the God's own city. This is Kerala. Okay, so you can see this is the map of India. This is the map of India. So you can see here the various states of India.
Now children, let us go to page number 28. This the chapter is on the farm. Okay, chapter का नाम क्या है? On the farm. Now we will first read what has been given on in this chapter. Okay, now Noe is really excited to visit Ron's farm. Now I'll read this sentence again एक साथ ही. Noe is really excited to visit Ron's farm. Then you read the next sentence. Use these clues to fill in the crossword on the things Noe will see on the farm. Now we'll read it. Use these clues to fill in the crossword on the things Noe will see on the farm. Now I'll read the whole two sentences together. Okay. On the farm. Noe is really excited to visit Ron's farm. Use these clues to fill in the crossword on the things Noe will see on the farm. यानी अब यहाँ पे जो नोई है वो कहाँ जा रहा है? रॉन के फार्म में जा रहा है, और रॉन के फार्म में जाने के लिए वो बहुत ही एक्साइटेड है. तो इसीलिए आपको यहाँ पे क्या दिया गया है? आपको एक क्रॉसवर्ड दिया हुआ है. बेटा क्रॉसवर्ड क्या है? ये है आपका क्रॉसवर्ड पजल. ठीक है, तो यहाँ पे नोवी जो देखेगा उसके क्लूज आपको नीचे क्वेश्चन में दिए गए हैं. तो वो क्लू को आपको उस क्लू की हेल्प से आपको ये क्रॉसवर्ड फिल करना है. यानी आप यहाँ पे क्या करेंगे? आप यहाँ पे सारे लेटर्स पुट अप करेंगे और उससे एक वर्ड बनाएंगे. ओके, इसी तरह से आप क्रॉसवर्ड सॉल्व करेंगे. सो बिफोर सॉल्विंग द क्रॉसवर्ड वी विल रीड द क्लूज. ओके, जो अक्रॉस और डाउन. अक्रॉस मीन्स सीधी लाइन. जब हम अक्रॉस की बात करेंगे तो अक्रॉस इस तरह से होगा. ओके, एंड जब हम डाउन की बात करेंगे डाउन इस तरह से होगा. यानी जो क्लूज हम लिखेंगे इस तरह से लिखेंगे. And across होगा तो straight. Okay. Now this is the clues. Now children, let us read first. And we will read the sentence across and down, and then in next class we will solve this. Okay. Now let us read it. Across. This is a place where a farmer lives. Now read it again. This is a place where a farmer lives. यानी ये ऐसी जगह है जहाँ पर एक फार्मर रहता है. Okay. Now let us read the second point. This is a place from where farmers take out water for their crops. Read it again. This is a place from where farmers take out water for their crops. यानी इसका मतलब क्या है? ये एक ऐसी जगह है जहाँ से जो फार्मर है वो पानी लेता है अपने क्रॉप्स को देने के लिए. प्लांट्स को भी पानी चाहिए होता है कि नहीं? यस, प्लांट्स को भी पानी चाहिए होता है. ओके, नाउ लेट अस रीड द नेक्स्ट पॉइंट. ओके, द पॉइंट नंबर 3 इन अक्रॉस सेक्शन. This is the name for a group of dogs. Now read the sentence again. This is the name for a group of dogs. यानी group of dogs को आप क्या कहेंगे वो आपको ऊपर के क्रॉसवर्ड पजल में लिखना है. तो आपको 3 अक्रॉस हैं. And then how many downs you have? Let us see. And there are 5 downs. Okay. So look here. हमने अक्रॉस पढ़ा जहाँ पर हमने क्या देखा करके दिस इज़ अ प्लेस वेयर फार्मर लिव्स. यानी ऐसी जगह जहाँ पर फार्मर रहता है. ऐसी जगह कौन सी होगी ये आप खुद सोचेंगे और टीचर को नेक्स्ट क्लास में बताएंगे. ओके, सो दिस इज़ अ प्लेस वेयर फार्मर लिव्स. तो आप ढूंढ के बताएंगे कौन सी प्लेस है. देन दिस इज़ अ प्लेस फ्रॉम वेयर द फार्मर टेक्स आउट वाटर फ्रॉम फॉर द क्रॉप्स. यानी ऐसी कौन सी जगह है जहाँ से फार्मर जो है पानी लेता है अपने क्रॉप्स के लिए. ओके,
एंड दिस इज़ द नेम फॉर द ग्रुप ऑफ डॉग्स। यानी एक ग्रुप ऑफ डॉग्स को आप क्या कहेंगे? आप ये तीनों आंसर मुझे नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे चिल्ड्रन। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।